Hello and welcome to Juresearch YouTube channel. So if you are an UGC NET aspirant, you must be aware about the importance of IPC subject, right? So that is why in this video I have come up with the compilations of previously asked questions from IPC, right? Which can help you to practice for June 2023 attempt. So first question is, arrange the following in proper sequence of taking place. So before us, we have got 5 options: intention, preparation, act, conviction and sentence. और इसी को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है. So see, क्राइम का बेसिकली क्या क्या स्टेजेस होता है. सो इट स्टार्ट्स विद इंटेंशन. इंटेंशन के बाद इंडिविजुअल प्रिपरेशन करता है. प्रिपरेशन के बाद एक्ट करेगा. एक्ट के बाद कन्विक्शन आएगा एंड कन्विक्शन जब प्रूव हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा, राइट. सो ये ऑलरेडी आपका सीक्वेंस में दिया गया है. So accordingly, option number 2, which is A, B, C, D, E, is your correct answer. Next question. Arrange the following chapters of IPC on the basis of ascending order, right? So we have got 5 options again. General exceptions, offenses against public tranquility, offenses against property, offenses against human body and offenses against state, right? So इसको आपको chapter wise arrange करना है. सो सी जनरल एक्सेप्शंस आपका चैप्टर 4 में कवर्ड है. ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आपका चैप्टर 8 में है. ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका 17th चैप्टर में दिया गया है. ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी इट इज कवर्ड अंडर चैप्टर 16, राइट. एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट आपका चैप्टर 6 में दिया गया है. तो अकॉर्डिंगली जो आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा वो ये बनेगा AEBDC, राइट. So accordingly, आपको option number 3 is your correct answer. Next question, that which section of IPC deals with solitary confinement? So whether it's covered under section 73, 70, 71 or 72 of IPC, you can also pause this video and think about it. So आइए पहले जान लेते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का. तो अगर कोर्ट ने किसी ऑफेंडर को, किसी कन्विक्ट को रिगरस इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस की है तो हो सकता है, राइट, इट्स नॉट मैंडेटरी बट हो सकता है दैट उस पर्टिकुलर कन्विक्ट को, उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी ऑर्डर पास कर दें, राइट. इस ये जो कन्फाइनमेंट होता है बेसिकली इसमें होता क्या है कि प्रिजनर को, कन्विक्ट को बेसिकली डिटेन कर दिया जाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, right, without any human contact, and the maximum duration of the detention is 3 months, right. So यही सारे provision आपके section 73 of IPC में दिया गया है. So hence option number 1 is your correct answer. Next question we have from chapter 4 which covers general exceptions. काफ़ी important part होता है आपका IPC का, right. So let us see what is the question. The right of private defense of body commences as soon as the reasonable apprehension of danger to the body arises and continues as long as such apprehension continues. So this observation was made by the Supreme Court in which case? Right, whether it was the case of Dio Narang versus State of UP or Ranga Billa case or State of Punjab versus Nalakchand or Ram Swaroop versus State of UP. So you have to choose the correct case. So see, the right of private defense काफ़ी important provision है, काफ़ी important concept है which is covered under your IPC from section 96 to section 106, right. और अगर आप स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी की बात हो रही है जो कि आपका सेक्शन 102 में कवर्ड है, राइट. सो द नेम ऑफ द केस इन विच दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड कि कितना एक्सटेंट होना चाहिए प्राइवेट डिफेंस का, right. So it was the case of Dio Narang versus State of UP. Hence option number 1 is your correct answer. So now we have the other question. ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है जिसमें कि आपको प्रोविजन से मैच करना है उसके पर्टिकुलर सेक्शन से. And as you can see that we have got few provisions, few sections from general exceptions. So general exceptions काफ़ी important है, ज़रूर आप करके जाएगा from section 76 to 106. सो जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ आपका दिया गया है सेक्शन 45 में. एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली ये आपका दिया गया है सेक्शन 77 में.
राइट। एक्टिव चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ये आपका दिया गया है सेक्शन 82 में, और एक्सप्लेनेशन ऑफ गुड फेथ ये आपका दिया गया है सेक्शन 52 में, राइट। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिनेशन पार्ट एंड द जनरल एक्सेप्शंस। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेशन भी काफ़ी ज़रूर करके जाइएगा, स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनका भी आप सेक्शन नंबर ज़रूर देख लीजिएगा। सो हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। Next question. To constitute the offence of affray under section 159 of IPC, there must be only one person, two or more person, fighting in public place to disturb public peace, fighting in private place. So out of the given four options, we have to choose the correct combination of the options, right? So affray भी काफ़ी frequently पूछा जाता है UGC नेट एग्जाम में, राइट। चाहे वो डायरेक्टली पूछ लेंगे, चाहे वो इसका पनिशमेंट पूछ लेंगे, चाहे वो सेक्शन पूछ लेंगे, लेकिन एफ्रे, राइट, अनलॉफुल असेंबली ये काफ़ी बार पूछा जाता है यूजीसी नेट एग्जाम में। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। सो सी आपका जो एफ्रे है वो सेक्शन 159 में दिया गया है, राइट। एंड अगर आप बेयर प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एफ्रे की बेसिकली। सो बेसिकली यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन चाहिए, राइट। फाइट होनी है तो मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए ही, राइट। एंड दे मस्ट फाइट इन पब्लिक प्लेस, राइट, विच मस्ट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, राइट। सो ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एफ्रे। इसका पनिशमेंट सेक्शन 160 में दिया गया है, विच इज लिमिटेड टू 1 month, राइट, एंड फाइन होता है 100 रुपीज का। सो हेंस ऑप्शन नंबर बी, 2 or more persons, option number C, fighting in public place to disturb public peace. So hence option number 2, the combination of B and C is your correct answer. Now the next question based on the two statements, जहाँ पे आपका assertion और reason दिया गया है। Assertion है whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable for fine, right? Reason है आपका section 393 of IPC provides for rigorous imprisonment which may extend to 7 years and fine for offense of attempt to commit robbery, right? So right out of the given options you have to choose the correct one. So देखिए जो रॉबरी है वो आपका सेक्शन 390 में डिफाइंड है, वेयर एज अटेम्प्ट टू रॉबरी आपका सेक्शन 393 ऑफ आईपीसी में दिया गया है। सो हेंस असर्शन रीजन आपके दोनों ही सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू असर्शन, एंड दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 is your correct answer. Next question. The provision regarding selling minors for purpose of prostitution etc. is given in IPC under which section? Right. So out of the given option, you have to choose the correct section. So your correct answer is option number 1, which is section 372. राइट, जिसमें कि आपका सेलिंग माइनर्स फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा दिया गया है और इसका पनिशमेंट है 10 years, राइट। सो ये जो सेक्शंस है विच इज़ रिलेटेड टू किडनैपिंग, अबडक्शन, ट्रैफिकिंग, राइट, ऑल दी सेक्शंस दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ज़रूर आप बेयर एक्ट से पढ़ के जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन. Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting Indian coin under section 232 of IPC shall be punished with, right? So out of the given 4 options, we have to choose the correct one. So the correct option is option number 1, which is imprisonment, which may extend to 10 years and fine, right? ये आपका section 232 में दिया गया है। सो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं और आप 2023 में ही अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो ज्यूरी सर्च एकेडमी आपके लिए यूजीसी नेट हाइव बैच लाया है, हाइव कोर्स लाया है, राइट, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके साथ साथ आपको मॉक्स भी मिलेगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। आपको अगर डिटेल्स जाननी है इस कोर्स के बारे में देन यू कैन विजिट द लिंक विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So if you are the one who is preparing for UGC NET exam, then for you,
Jurisearch Academy has just launched a crash course which is exclusively made for June 2023 attempt, right? So इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑनलाइन मोड फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। इसके साथ साथ आपको मॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर डूइंग प्रैक्टिस एंड और भी कई फीचर्स है विच इज एडेड इन दिस कोर्स। So to know more about this course or to buy this course, please do contact on a given number which I have dropped under the description box. So देखिए IPC आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर UGC नेट एग्ज़ाम। आप इसको साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। जितना भी आपका सिलेबस में दिया गया है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर्ड है। आप उसको ज़रूर पढ़ के जाइए। नाउ अब आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए फॉर IPC सब्जेक्ट? तो देखिए फ्रॉम डेफिनेशन टू डेफेमेशन आपको मोस्ट ऑफ द सेक्शंस कवर करने हैं, राइट? जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ऑफेंसेस है उनका पनिशमेंट आप ज़रूर देख के जाइए, जैसे एफरेक, रायट, अनलॉफुल असेंबली हो गया, आपका काउंटर फीटिंग है, ये सारे सेक्शंस और थेफ्ट हो गया, ये सारे सेक्शंस के पनिशमेंट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ के जाने हैं और रीसेंट जजमेंट्स भी आप इस बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये जो आपका मार्च में एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, इसमें आपका रीसेंट जजमेंट्स भी पूछा गया था, नॉट फ्रॉम IPC बट येस फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट for us to also concentrate upon the recent judgments as well, right? So these are the things which you should take a note of for the preparation of IPC subject. And thank you for watching this video, and do not forget to subscribe to this channel to get the further updates.